Now we are going to continue the topic. So in the previous class, we had started the first chapter of the second book, that is population, distribution, density, and composition of India. So this chapter is basically related to the population only, but in reference to Indian population. So the topic, which the last topic which we finished was growth of population. So growth of population is calculated in two ways. One is natural and the other is induced, which you already know. Natural means when birth rate and death rate are taken into account. Birth rate and death rate is minus from birth rate. So we get the natural population growth rate, जो आपका प्राकृतिक होता है, जो नेचुरली हम बर्थ और डेथ को लेकर ही कैलकुलेट करते हैं. But the real population growth is calculated by the third criteria also, that is migration, which is known as induced population growth. Induced, or in the first book it is given actual population growth. So induced or actual, both are the same. So in induced we also take into account migration. So मैंने आपको formula बताया था that if we have to calculate induced, because in the examination it can come like write the formula to calculate growth of population, actual population growth. So you have to write that birth rate minus death rate plus in migration minus out migration. So this is the formula for induced or actual growth rate. Now here you can see this is in this table, decadal growth rate in India has been given from 1901 to 2011. Now here you can see in 1901 the percentage of growth, we don't have the data because at that time census was not held properly, so we don't have the data for that decade. Then in 1911 the population growth rate was 5.75 only. So only our population was increasing for only 5.75% जो है रेट पर हम इंक्रीज हो रहे थे. एंड इट इज डिकेडल. डिकेडल मीन्स 10 years का ये दिखा रहा है, ये पर एनम का नहीं है, इट इज ग्रोथ रेट पर डिकेड का है. डिकेड मीन्स 10 years. Then 1921, the growth rate of India declined to 0.31 because 1921 was the year when इंडिया में काफ़ी एपिडेमिक फैला था, ड्रॉट की कंडीशन हुई थी, भुखमरी थी, तो काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे, तो दैट्स वाई निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चला गया था. देन इन 1931 इट इंक्रीज्ड टू 11%. सी यू कैन सी डबल हो गया हमारा जो ग्रोथ रेट था, 11.60%. दिन 1941 इट बिकेम 14%. Then 13, 21, from 1951 it is continuously increasing. 61, 20, 21%, 1971, 24, 24. So आप 1981 तक देख सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन था इट वॉज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी. यहाँ पे ये जो तीन है आपके 21, 24.80, 24.66, 1961, 71 एंड 81, इन तीन डिकेट्स में जो है हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है, बिकॉज दिस वाज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड medical facilities were improved a lot. And so the rate was same. Birth rate high ka high tha, but death rate declined suddenly in India at a very fast rate. That's why due to high birth rate and low death rate, population growth rate became very high. ठीक है. बच्चे तो वैसे ही पैदा होते जा रहे थे, बट जो मृत्यु दर था वो कम हो गया ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बेटरमेंट इन द मेडिकल फील्ड. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? पॉपुलेशन ग्रोथ विल इंक्रीज. ठीक है. जब भी हम बर्थ रेट और डेथ रेट को लेते हैं तो साथ ही साथ हम क्या उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ग्रोथ रेट के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर. तो अगर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट नीचे आ गई है, कम है, इट मीन्स ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि लोग तो मर ही नहीं रहे. डेथ रेट नीचे आ गया, लोग मर रहे नहीं, और बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, बच्चे पैदा होते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इसका मतलब ग्रोथ रेट सबसे अधिक था. एंड दिस इज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. जनसंख्या विस्फोट का समय कहा जाता है 1981 को. एंड फ्रॉम दिस डिकेड ओनली इंडिया रियलाइज दैट द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ एसेट फॉर अस, बट इट इज लाइक अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स बर्डन फॉर इंडिया.
मतलब फर्स्ट टाइम वी रियलाइज दैट नाउ आवर पॉपुलेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस। उससे पहले हमारे घर में 6-6, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे, लोगों को इतना रियलाइज नहीं होता था। बट आफ्टर, क्योंकि जितना अब आपको पता है कि पहले इन द प्रीवियस, इन द ओल्डन टाइम, इन द अर्लियर डेज, people had huge families. One couple, they used to have 7 to 8 children in their house. So ये कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बच्चे पैदा करने का शौक था, बट ये एक रीजन था इसके पीछे। क्योंकि आप ये सब डिकेट देखेंगे ना, इस समय क्या था, इंडिया में काफी ज्यादा भुखमरी थी, ड्रॉट की कंडीशन थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, और जो है छोटी मोटी बीमारियों से भी जो है बच्चे मर जाया करते थे। तो इसलिए जो फैमिलीज थी वो अपने घर में ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, ताकि अगर एक दो नहीं भी रहे तो जो है कुछ तो बच जाएंगे। एक ये रीजन होता था कि जो है मतलब बच्चे थोड़े से ज्यादा होते थे। बट जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, तो वो जो था शिशु मृत्यु दर था वो नीचे आ गया, और पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई। अब ला इलाज बीमारियों के भी जो इलाज आ गए, वैक्सीनेशन जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है फैमिली प्लानिंग जो है स्कीम्स चलाई, ताकि जो आपके जो है फैमिली को मतलब जो कपल्स हैं उनको ये प्रोत्साहित किया जा सके कि वो सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करें। तो इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया ऑन द मीडिया में, जगह जगह एडवर्टिजमेंट्स निकालना, ताकि जो है छोटी फैमिलीज हो। तो उसका रिजल्ट जो आया, और जो है population growth declined to just 1% in 1991, and it became 23.85%. Then from that time, the population growth rate is continuously declining. 2001 it was 21.54, and 2011 it was 17.64. तो डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन तब भी वो पॉजिटिव में ही जाएगा। और आप सोच लीजिए कि ये भी कोई कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 17.64% भी समझ लीजिए कि आप करोड़ों में जाता है। ठीक है ना, करोड़ों क्या, मिलियंस में जाएगा ये 10 साल में, मतलब मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन इज एडेड इन इंडिया इन ईच डिकेड। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसको बिल्कुल लगाम लगाना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रखा है। ठीक है, तो ये आपका है डिकेडल ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो P1 यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि जिस ईयर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर को हम लेते हैं। एंड पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, कि जिस मान लो पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, मतलब कि जिस साल का हम निकाल रहे हैं उसको हम ले लेते हैं, और नीचे भी उसी को लेते हैं, P1 को ही लेते हैं, बेस ईयर को ही लेते हैं, और उसको इंटू 100 कर देते हैं। इस फॉर्मूले से हम जो है डिकेडल जो ग्रोथ रेट है परसेंटेज में, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2011 का 17.64 है, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। So the problematic decades in the population growth rate in Indian history is 1961, 71, and 81. Because in 3 decades only, the population of India grew, in leaps and bounds. और आज जो हमारी कंडीशन है इतनी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की, वो इसी टाइम्स की, क्योंकि उस समय हमने बिल्कुल नहीं सोचा, और हमारी जो जनसंख्या है वो बिना सोचे समझे इंक्रीज होती रही। नाउ हियर इन द मैप ऑल्सो यू कैन सी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2001 से लेके यहाँ पे 11 तक का दिया हुआ है, मतलब 10 साल का दिया हुआ है जो हमारा पुराना सेंसस था। इन द दिस index you can see that all those areas where this type of shading is done, there the population growth rate is very less. It means these are the good areas, because the population growth rate is very less than 10%. Then जहाँ भी आपको ये दिखे, like आंध्र प्रदेश और ओडिशा, वेस्ट बंगाल, so in these states population growth rate is between 10 to 15%. Then states like these गुजरात, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, ऊपर भी कुछ स्टेट्स हैं ऐसे, आप ये देख सकते हैं, उत्तराखंड, देन ये सब जो है आपके ये क्या है, हरियाणा है। हाँ, तो ये सब, हाँ, सो ऑल दी स्टेट्स देन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कितनी रही है, 15 to 20%। देन 20 to 25% जो है वो रही है आपकी पूरे ये जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन देन दिस ये क्या, झारखंड, तो इन स्टेट्स में जो है, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई है 20 to 25%। एंड इन बिहार, देन मेघालय,
देन अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिखा रहा है कि ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है अबाउट 25%. So this is also a choropleth map because data is depicted in the shading form. You can see the growth rate of population in different states of India. So you can see that Bihar जो है और अरुणाचल है यहाँ पे high population growth rate रहा है. Then जो North India है like UP देन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का रहा है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो अचानक से नहीं बढ़ी. अभी आपने जो टेबल देखा था उसमें आपने पूरे डिकेट्स देखे हैं. 1901 से लेके 2011 तक का आपने पूरा जो है देखा और आपने देखा किस तरह से है. अर्लियर इट वाज very less, population growth rate was very less, then slowly and steadily it started increasing, and then came the decade of 61, 71 and 81 when the population growth rate was at its peak. And then again after 1991 it started declining due to different efforts made by the government, awareness program by the government. So same thing which we are going to study through these different phases. This is known as demographic transition theory. You have already studied about the demographic transition theory in the first book. वहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया था कि demographic transition theory क्या होता है. It tells you or it predicts about the population growth of a particular area, of a particular region in different stages. कि किसी भी क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से घटेगी, इसके बारे में वो एक अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं. इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो नाउ इन रेफरेंस टू इंडिया, नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में एंड समटाइम्स 5 मार्क्स में भी आते हैं. So instead of asking directly, they can ask you like explain the explain how the population of India increased with the passage of time. मतलब वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन करो इंडिया की. वो आपसे ये कहेंगे कि फेजेस में है या फिर इंडिया की जनसंख्या धीरे धीरे किस तरह से बढ़ी है, आप एग्जाम्पल देते हुए बताइए, या फिर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम जो है पॉपुलेशन जो है ग्रोथ आप इंडिया की समझाइए. तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाना कि आपसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पूछी जा रही है. सो इंडिया हैज 4 phases in which the population of India increased. तो हम देखते हैं फर्स्ट फेज क्या है. नाउ इसको आप बहुत ही सिस्टमेटिक अपने नोट्स बनाएंगे. फेज 1 लिखेंगे आप, और फेज 1 में जो जो मैं टिक मार्क करूंगी पूरा आपको नहीं लिखना है, जो जो टिक मार्क कराया जा रहा है आपको वो उसमें मेंशन करना है, आपको उतना लर्न करना है. ठीक है, बाकी आप जब एग्जाम में आएगा तो आप 1 2 3 कर करके जो है अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर देंगे. पॉइंट्स के यू विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स. सो फर्स्ट थिंग इज फेज 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 1901 to 1921. In this is a 20 years phase which is referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population. Stagnant means रुका हुआ, stationary and stagnant means the same thing, that nothing is happening. जो भी जनसंख्या जैसी थी वैसी की वैसी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है. India's population since in this period growth rate was very low, even recording a negative growth rate during 1911-21. So 1911-21 में तो नेगेटिव थोड़ा बहुत आ गया था, नहीं तो इस समय 1901 से 1920 वक्त 1921 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं आया. इट वॉज स्टेगनेंट एंड स्टेशनरी, रुकी हुई थी. देन बोथ द बर्थ रेट, अब ये देखो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आपने पहला लिखा 01 से लेके 21, then period of stagnant and stationary phase because population growth rate was very low. ये लिखेंगे आप, growth rate was very low. Then birth rate, death rate were high, keeping in the rate of increase low. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या आएगा, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई. बच्चे पैदा भी ज्यादा होते थे लेकिन मरते भी उतने ही थे. सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई. तो दोनों जब हाई थे तो उसका नतीजा ग्रोथ रेट पे क्या निकलेगा, लेस. तो जब मान लो पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, मर भी उसी रफ्तार से रहे हैं, तो फिर आपकी पॉपुलेशन तो ग्रोथ में होगा ही नहीं, है ना. इसीलिए जो है इस फेज को हम स्टेगनेंट और स्टेशनरी कहते हैं, क्योंकि दोनों जो थे बर्थ और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे और इस समय जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी. अब इसका रीजन क्या था,
poor health. Now you can think about India. What was the condition of the Indian people during the British time? Because we are talking about 1911 and 21. So all the negative things you can think about the population. Like people were in poor health. Then there were lack of medical services. Then people were illiterate. Then inefficient distribution of food and other basic necessities were not present. तो लोगों की जो हेल्थ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, मेडिकल सर्विसेज नहीं थे उसमें, हॉस्पिटल्स और अच्छी सर्विसेज नहीं थी। देन लोग अनपढ़ थे तो उनको उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, पढ़े लिखे नहीं थे, रोजगार नहीं था, गरीबी थी, इनएफिशिएंट। और जो सरकार गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भी उसका भी कोई रोल नहीं था ना, वो फूड एंड अदर बेसिक्स नेसेसिटीज को लोगों तक प्रोवाइड करने में उनका कोई योगदान नहीं था, क्योंकि उनको सिर्फ जो है पैसे कमाने थे इंडिया से। तो उन्होंने लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो इंडिया के लोगों की कंडीशन उस समय काफी बुरी थी, इसीलिए जो है लोग मरते भी थे, बच्चे भी जो पैदा होते थे वो भी मर जाते थे, बहुत सर्वाइव नहीं कर पाते थे। और लोगों का जो औसतन जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के लोग जो थे इस समय तक, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इट वाज वेरी पुअर। मतलब औसतन एक भारत का जो व्यक्ति था वो सिर्फ 37 ईयर्स तक जीता था। ठीक है, ओनली 37 ईयर्स। मतलब सोचो कितनी पुअर। मैं ये नहीं कह रही कि सब मर जाते थे 37 होते होते, लेकिन इट वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप समझते हो ना, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी लिव बाय अ यू नो ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री। तो एक औसतन जो एक होती है ना, आप सोचिए जापान के लोग कितना जीते हैं, कम से कम 90 साल, उनके तब भी 70 साल तो होता ही है, उनका 70-80 साल उनका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। बट लेकिन इंडिया के लोगों में ओनली 37 ईयर्स जो थी, वो औसतन उनकी जीने की एक वो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। क्योंकि ना खाना पीना था ढंग का। जब आपको खाना पीना नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। जब इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से आपके ऊपर वो कर सकती है। और अगर बीमार हुए तो मेडिकल सर्विसेज नहीं है आपके पास, और आप किसी भी छोटी मोटी बीमारी से भी आप मर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो फेज था, ये काफी मतलब ऐसा फेज था जिसमें इंडिया की जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी, वैसे की वैसे ही थी। बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई। तो जो जब दोनों भी ऊपर हैं तो ग्रोथ रेट क्या होगा? जीरो। जीरो था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड फेज क्या आया, 1921 टू 51। इस पीरियड को हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टडी मीन्स अब धीरे धीरे भारत की जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई, बिकॉज इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज जो है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई है इन सालों में। 21, 31, 14, 30 ईयर्स में हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। सैनिटेशन फैसिलिटीज जैसे शौचालय है और इन सब चीजों से रिलेटेड जो है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। इससे क्या हुआ कि मोर्टेलिटी रेट धीरे आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, इस फेज में आपका डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट, देखो डेथ और मोर्टेलिटी एक ही चीज है। डेथ या मोर्टेलिटी इज द सेम थिंग, बर्थ एंड फर्टिलिटी इज द सेम थिंग। फर्टिलिटी मीन्स पैदा होना और बर्थ रेट सेम हो गया, और डेथ और मोर्टेलिटी मतलब मरना। सो जो मोर्टेलिटी रेट जो काफी हाई था फर्स्ट फेज में, और वो सेकंड फेज में धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो इस फेज में आप याद रखिए कि बर्थ रेट ऊपर का ऊपर ही रहा, बर्थ रेट वॉज स्टिल हाई, बट डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ये डेथ रेट जो था आपका धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, लेकिन बहुत ही स्लो पेस पर। क्यों? क्योंकि इस समय मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, बट इस समय मेडिकल फैसिलिटीज धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गई। देन थोड़ा सा बेटर ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, क्योंकि इस समय तक हमें आज़ादी भी मिल गई थी। वो बात अलग है कि मतलब आज़ादी मिले कुछ ही टाइम हुए थे, बट स्टिल इंडिया ने थोड़ा डेवलप किया, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव हो गया। तो इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट बर्थ रेट remained high, as I said here. I said birth rate remained high, but death rate started declining. So what will happen? Population will increase. ठीक है, अब पैदा तो उसी रफ्तार से हो रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है। तो जब मृत्यु दर नीचे आ जाएगा, मतलब मरने की जो है संख्या कम हो जाएगी, तो लोग जो है वो ज्यादा जिंदा ही बचेंगे। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन जो है अब इंडिया की धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है इसी फेज से, 1921 से 51। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा ये 51 का जो टाइम है ये ग्रेट डिप्रेशन का भी टाइम है, इकोनॉमिक डिप्रेशन का, क्योंकि इस समय आप देखिए तो 1940 1939 से ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं।
तो ये अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई थी 1929 के टाइम में। तो मतलब क्योंकि वर्ल्ड बैकग्राउंड भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है इंग्लैंड जो था वो हमारे पर रूल कर रहा था, और इंग्लैंड वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका भी टाइम था। देन फेज थर्ड आया। फेज थर्ड 1951 टू 81। सी आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फेजेस, फर्स्ट फेज वन एंड फेज टू। फेज वन, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड stagnant population growth, means population nahi बढ़ी. In the second phase, birth rate was high, but death rate started declining. It came down slowly and steadily, and then population of India started increasing slowly. Slowly मतलब ये नहीं कि अचानक से बढ़ गई, steady. यहाँ पे दिया ना steady. Steady means धीरे धीरे population बढ़ना शुरू हो गई. क्यों? बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर हो गया. देन फेज थर्ड. Phase third is from 51 to 81, and this period is known as the period of population explosion. जस्ट आपने अभी जो टेबल था उसमें पढ़ा था ना, 61 से ही पॉपुलेशन आपका बढ़ना शुरू हो गया था. 61, 71, 81. अब इसमें क्या हुआ, इसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई इंडिया की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बर्थ रेट वैसे का वैसा ही रहा इसमें, ठीक है. और यहाँ पे सेकेंड फेज में बर्थ डेथ रेट डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, बट ये बर्थ है. थर्ड फेज में जो डेथ रेट था वो डिक्लाइन नहीं हुआ, वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे आके गिरा, मतलब बहुत ही तेजी से नीचे आ गया, ठीक है. इट डिक्लाइंड वेरी फास्ट. इसमें स्लो डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट का, मतलब मृत्यु दर धीरे धीरे कम हुई, बट इसमें मृत्यु दर बिल्कुल ही नीचे आ गई, क्योंकि इस समय वर्ल्ड ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया था. इंडिया में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ था, और मेडिकल सर्विसेज और अच्छी हुई, लेकिन उसके साथ साथ कोई कुछ और कारण थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ी थी. अब वो हम देखते हैं क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई पीरियड ऑफ 1981 इज रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. गिव 3 और जो भी है रीजन आप बताइए, ठीक है. अब हम देखते हैं क्या है. तो इसमें क्या था, बर्थ रेट वाज स्टिल हाई इन द थर्ड फेज, बट डेथ रेट डिक्लाइंड वेरी फास्ट. द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज हाई एज 2.2%. मतलब इस दर पे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है. अब ये इन द मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो गया था, बट हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री. सो मोर्टेलिटी रेट फॉल डाउन, देखो लिखा ना, विच वाज कॉज्ड बाय रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, बट फर्टिलिटी रेट जो था वो वैसे का वैसा ही रहा. हाई फर्टिलिटी एंड रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट. तो मोर्टेलिटी रेट तो नीचे आ गया, बट जो बर्थ रेट था वो हाई का हाई रहा, 2.2%. ये डेटा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%. मतलब हर साल 2.2% जनसंख्या बढ़ रही थी. अब आप सोचेंगे 2.2 तो बहुत ही कम होता है, बट 2.2 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मान लो अगर इंडिया की पॉपुलेशन सपोज मान लो 1 बिलियन भी है, तो उसका अगर आप 2% भी निकालेंगे तो आप समझ लें कि ये मिलियंस में चला जाएगा आपका 2.2% भी, ठीक है, करोड़ों में चला जाएगा. तो इसका हर साल करोड़ों पॉपुलेशन ऐड हो रही थी इंडिया की जनसंख्या में. सो अब इंडिया की जनसंख्या बर्थ रेट तो हाई था ही, बट और भी कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ी है. फर्स्ट, इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलप, अब हमें आज़ादी मिल चुकी थी, अब हमारे देश में खुद की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, ठीक है. डेवलपमेंट विकास परियोजनाएं स्टार्ट हो गई. इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1952 में प्लानिंग स्टार्ट की, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड हुआ. इकोनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, and it ensured improvement of living condition of people at a large scale, ठीक है. अब देखो, जब हमें आज़ादी मिल गई तो हमारी खुद की सरकार थी, हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट कर दिया. सबसे पहली बार प्लानिंग स्टार्ट किया, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, और प्लानिंग किया, फोकस किया इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो लोगों को रोजगार मिला. इससे क्या हुआ, जो लोगों की लिविंग कंडीशन थी वो काफी इंप्रूव हुई, उन्हें बेहतर खाना मिलने लगे, न्यूट्रिशन मिलने लगे, उनकी हेल्थ बेहतर हुई. तो इससे आपका जो है मृत्यु दर कम होना ही होना था, ठीक है. अब नेक्स्ट रीजन क्या था, कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो साथ देखिए, एक तो विकास काम आपके देश में, अब खुद अपनी फैमिली में देखिए, अगर किसी परिवार में खाना पीना बच्चों को अच्छा नहीं मिलता है तो वो बीमार रहते हैं, और इसी से जो है बीमारियां होती हैं, और मतलब
मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जब बेहतर खाना मिलेगा, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होगी, आप खुशहाल जिंदगी जियोगे, तो आपकी लाइफ उतनी ही इंक्रीज होती है। तो उसी तरह से हमारे देश की सरकार ने जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लेकर आए, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेकर, यू हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड्स, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, centralized planning after independence. So our economy started growing up, and which affected the living standard of the people. लोगों को बेहतर न्यूट्रिशियस फूड मिलने लग गया, उनकी इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई। सो बर्थ रेट जो है और तेजी से बढ़ने लग गई। नाउ सेकंड फैक्टर क्या था इस समय, जो है आपका ह्यूज लार्ज स्केल इंटरनल माइग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। दूसरे हमारे जो पड़ोस जो नेबरिंग कंट्रीज थे, वहां से जो है बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज लाइक तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है, इन कंट्री से ह्यूज माइग्रेशन हुआ है इंडिया में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, विच ऑल्सो एडेड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड स्पेशली बांग्लादेश से। आपने सुना होगा कम से कम 1 लाख से ज़्यादा चकमा जो रिफ्यूजीज थे, जो है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे कि बहुत न्यूज़ में कि बहुत सारे जो हैं इलीगली जो बांग्लादेशीज हैं, रिफ्यूजीज हैं, वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्हें जो है, आप जानते हो इंडिया में पॉलिटिक्स जो है कितनी खराब टाइप की है कि मतलब वोट के लिए किसी कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ की जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, उन्हें मतलब भगाया नहीं, ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला कि आज के टाइम में वो इंडिया में इलीगली रहते रहते, वो इंडिया में इतनी उनका वो बन चुका है कि अब वो यहाँ पर सेटल हो गए हैं। और आप देखते हो बहुत ज्यादा जो ये क्राइम होता है, या फिर क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, तो ये क्राइम में और गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी आप भी सुन रहे हो, पता नहीं कौन सी मुस्लिम जनसंख्या है वो जो इंडिया में एंटर कर रही है, जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसकी जिसके ऊपर काफी बवाला चल रहा है। तो इसीलिए तो जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी ये सिटीजनशिप जो भी पूरा कानून लेकर आ रहे थे, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम इन्हीं लोगों को है, क्योंकि ये लोग इंडिया के नागरिक नहीं है, और ये काफी अमाउंट में इंडिया में उस समय एंटर किए थे, जो आज के टाइम में ये इंडिया जो है किसी अब इंडिया में ही एज ए पार्ट बन के ये रह रहे हैं। सो इफ इन एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड बाय पॉपुलेशन विच पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आपका आंसर क्या होगा, पीरियड ऑफ 1951 टू 81। एंड देन वो आपसे पूछा जाएगा कि वाई, तो आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग दिस टाइम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी हाई, बिकॉज first of all, after independence, Indian government introduced developmental projects, and also introduced centralized planning, which led to economic development of India, and people got employment in at large scale, and the living standard of people improved. They got better nutritious food, which increased their healthy life. उनकी लाइफ हेल्दी हो गई, तो इससे जो है आपका मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, बट और नेचुरल ग्रोथ बढ़ गया। Then second was that this was the period in which huge internal migration from neighboring countries into India took place, especially from Tibet, Nepal, Pakistan and Bangladesh. सो इससे जो है इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हुई, और इसलिए इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम कहते हैं। एंड द लास्ट इज 1981 से लेके अभी तक का टाइम पीरियड, जिसमें अब जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि लेकिन अब ऑलरेडी हम इतना पहुंच चुके हैं। आपको सोचे, एक होता है हम स्पीड में गाड़ी जब चलाते हैं, और जब हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, हम चाहे कितना भी ब्रेक मारे तो वो आगे बढ़ी जाती है। तो बस इंडिया का वही एक हो गया है कि अब इंडिया अपनी पॉपुलेशन पे कितना भी ब्रेक मारे, तो ऑलरेडी हमने इतना बना लिया है कि अब हम जो है अपने आप को रोकते रोकते भी हम 1945 टू 2045 तक वी विल सरपास चाइना, एंड वी विल बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि चाइना ने अपनी जो है वन चाइल्ड पॉलिसी जो है आज से 30-40 साल पहले लागू करके उसको अपनी जनसंख्या बहुत कंट्रोल कर ली, और अभी इन्होंने 2 साल पहले अपनी पॉलिसी जो है रिपेल की है। बट इंडिया ने ऐसा, इंडिया को की डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोगों को वेलफेयर ये अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे देश में अभी भी जो है आप कई ऐसे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जैसे कि बर्थ रेट उनके में काफी ज्यादा है। तो बेसिकली जैसे कई लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे भी होते हैं, तो बच्चे हमारे इंडिया में जैसे बच्चों लड़कों का कल्चर है, लड़के होने चाहिए, तो इस चक्कर में भी जो है हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी जो है ट्रेंड नीचे जा रहा है। अब जो है लास्ट स्टेज में क्या हुआ है कि हमारा ये मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट तो नीचे था ही, ये हमारा डेथ रेट है नीचे था, बट जो हमारा बर्थ रेट है अब वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया है।
सो इट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक तो गवर्नमेंट की एफर्ट की वजह से। नाउ अब हमारा जो पूरा एकदम सिस्टम बदल गया है। अब मेनली अर्बनाइजेशन हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अब हर घर में जो है लोग 2 ही बच्चे चाहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, लोग खुद ही चाहते हैं कि लोग क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो उनके बस का खुद ही नहीं है कि वो 2 एक भी बच्चा पाल, एक बच्चे से ज़्यादा वो पाल सकें, क्योंकि अब सब कुछ, हर कोई वर्किंग है, घर में फीमेल मेल सब वर्किंग है। तो इसीलिए अब वो कल्चर ही चला गया है। तो अब जो है मुश्किल से लोग अब और लोगों को थोड़ा शर्मिंदगी भी होती है कि अगर उनको ये कहना पड़ जाए बाहर के हमारे 4-5 बच्चे हैं। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें जो है आ चुकी है ट्रेंड में। तो और जो ये अब बाल विवाह भी कम हो चुका है, बैन बैन हो चुका है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो चुकी है, और महिलाओं की जो स्थिति हमारे भारत में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। जिसके कारण जो है हमारा जो बर्थ रेट है वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पहले महिलाएँ पढ़ी लिखी नहीं थी। अब महिलाएँ पढ़ लिख गई हैं, तो अब वो जानती हैं कि जो है कम बच्चे रहना ही सही है। तो मतलब इन सब अवेयरनेस की वजह से अब पॉपुलेशन जो है वो धीरे-धीरे हमारी डिक्लाइन हो रही है। तो वो आई होप कि आपको ये जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है। बेसिकली आपको यू हैव टू एम्फसाइज़ ऑन द ईयर। जब आप आंसर लिखोगे तो पहले ईयर आपको पता होना चाहिए, देन इट इज़ स्टैग्नेंट, स्टेशनरी, स्टेडी, कौन-सा फेज़ कहा जाता है इसको, देन इसमें बर्थ रेट की क्या कंडीशन थी, डेथ रेट की क्या कंडीशन थी, और पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या हुआ। ये चीज़ें आपको मेनली इसमें बेसिकली मेंशन करनी है, एंड देन रीज़न्स मेंशन करने हैं। तो इसकी आप जो है नोट्स बना लेंगे। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि भारत की जनसंख्या किस तरह से बढ़ी है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन वाज लेस, देन स्टेडीली इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर 1931-51, एंड देन इट बिकेम ब्लास्ट फॉर इंडिया इन 1981 के टाइम में। 61 से ही बढ़ना शुरू हो गई थी, और 81 में आते आते पॉपुलेशन एकदम ब्लास्ट का टाइम कहा जाता है, एक्सप्लोजन का टाइम कहा जाता है। एंड देन उसके बाद जो है 81 के बाद धीरे धीरे हमारी जनसंख्या जो है अब धीरे धीरे कम हो रही है। ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग स्लोली। तो ये जो है आप इतना इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसके जो है नोट्स बना लेंगे, तो ये जो क्लास ओवर होती है।